Okay, sir. Today we all are gathered here to introduce a new session, new program which is organized by GMP Compliance Academy, and GMP Compliance Academy introduce a new program which is Young Emerging Farmer Leaders Program. Basically, due to this program we can give platform to young leaders to share their experience and share their knowledge with us. And thank you everyone to all attendees who participated in this program. And again, and thank you Mr. Kashif Ali, guest of this program. It will be very honor to having Mr. Kashif Ali as a guest in this program. He's belong from Sir Pharmaceutical. He's a manager. He's a leader of the regulatory affairs program. Now I'm moving toward Mr. Kashif Ali. Please start your session. Okay. Thank you, GC Academy, to give me this opportunity to provide my experience and knowledge regarding regulatory affairs. And today our topic is past, present, and future of draft regulations. Let's start with my presentation. Can you share my screen? Hello. Yes. Can you see my screen? No, not yet. I just seen your video. Wait a minute. Yes, now I can see your screen. Okay, thank you. So our today topic is past, present, and future of draft regulations. First of all, today we will discuss a brief my profile about my experience. And then we have draft history timelines. Uh, what was DRAP, or before 2012 it was Ministry of Health. Briefly we will discuss about the Ministry of Health. What are different divisions of DRAP, past, present, and future of DRAP regulations, milestone achievements by DRAP, and important SROs and regulations of DRAP. This is my brief profile. I graduated from University of Karachi, Bachelor of Pharmacy from University of Karachi. Then I did my Master of Business Administration from Ikra University. Total, I have around 12 years of experience, worked in different companies. I have worked in Gates Pharma for around 7.5 years. And currently I'm working in Cell Company Limited as a lead manager, regulatory affairs. And I have experience of looking after the regulatory affairs functions of around 25 countries, both local and international. And it is for the ASEAN region, African region, Asian region, and Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka. This is my total experience and my exposure for regulatory affairs. Now you can see the draft history timeline. After the independence, 1947, we have two different acts. One was the Poisons Act, which was in 1919. Then second one was the Dangerous Drug Act, which was in 1930. Then our first act, which was after our independence, was in 1976. ये जो ड्रग एक्ट है, ये फर्स्ट टाइम जब एक्ट बना, और इसी के ड्रग एक्ट बनने के बाद हमारे पास जो पाकिस्तान में रेगुलेशंस आई और रेगुलेटरी अफेयर्स और डिफरेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसीड हुई, और कंपनीज जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेना शुरू की. फर्स्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो रजिस्टर्ड हुए, जिनको ग्रांट किया लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, देन उसके बाद जो है प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुई. उसके बाद 1976 से लेके ऑलमोस्ट 2010 तक यही रूल्स फॉलो है, और डिफरेंट कंपनीज ने जो है ना वो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अवेल की, और 2010 में जो है वो
कुछ चेंजेस आए और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हुई बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट। अराउंड 1 से 2 साल के दरमियान जो है वो थोड़े से चेंजेस हुए और रीशेपिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। देन उसके बाद एक डिफरेंट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी थी कि हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो स्पेसिफिकली देख रही हो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, कंट्रोल सब्सटेंसेस को, और इसके अलावा जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। बिकॉज उस टाइम पे 2011 में आपको पता है कि एक सिनेरियो आया था पाकिस्तान में जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो डेथ्स भी हुई थी एक प्रोडक्ट की वजह से। तो इसीलिए फिर फार्मा इंडस्ट्रीज और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिल बैठ के एक जो है ना वो डिस्कशन की, और डिस्कशन के बाद फिर जो है वो असेंबली से अप्रूवल होने के बाद एक एक्ट बना। उस एक्ट के तहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वजूद में आई जो 2012 में हुई। अच्छा, 2012 से पहले जो वर्किंग हमारी चल रही थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू जो है वो सारी वर्किंग हो रही थी। इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में देयर वाज नो सेपरेट डिवीजन और डिपार्टमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम कहें कि वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या हेल्थ एंड ओटीसी की प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना वो कोई सेपरेट डेडिकेटेड डिवीजन नहीं था। सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से ही प्रोडक्ट रजिस्टर हो रही थी। बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इतनी ज़्यादा मीटिंग्स नहीं हो रही थी, इसीलिए आप समझ लें कि अराउंड 2 से 3 मीटिंग्स होती थी साल में, तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा था। तो कंपनीज को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए और लॉन्चेस के लिए। हेड काउंट जो है बहुत कम थे क्योंकि डेडिकेटेड टीम्स नहीं थी, इसीलिए उनकी नंबर ऑफ हेड काउंट्स जो है वो कम थे जो एप्लीकेशंस को रिव्यू करें और एप्लीकेशन को अप्रूवल दें। डेडिकेटेड टीम नहीं थी तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं हुए थे कि अगर जो रजिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन देखनी है या उनको लाइसेंसिंग भी देखनी है, और उनको रजिस्ट्रेशन के लाइसेंसिंग के अलावा कोर्ट अप्रूवल भी देखना है। तो क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टाफ की नहीं थी। इसके अलावा जो हमारे पास जो गाइडलाइन फॉलो हो रही थी वो बहुत पुरानी गाइडलाइंस पाकिस्तान में फॉलो हो रही थी। बहुत अशद ज़रूरत थी कि हम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपनी गाइडलाइंस बनाएं और अपनी अथॉरिटी भी उस लेवल पे आ जाए। 2012 में ड्रैप बनने के बाद तकरीबन करंटली 12 डिविजन्स हैं जो ड्रैप के अंडर काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो है फार्मेसी इवेल्युएशन एंड रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 इज लाइसेंसिंग। नंबर 3 इज QA&LT। तो चौथा डिवीजन है वो मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स। फिफ्थ वन इज बायोलॉजिकल ड्रग्स। सिक्स्थ इज कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स जो है वो जो कोटा अप्रूवल की प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए जो है कंट्रोल ड्रग्स एक सेपरेट डिवीजन है जो इसको लुक आफ्टर कर रहा है। हेल्थ एंड ओटीसी के लिए जो है सेपरेट डिवीजन उन्होंने बनाया है ड्रैप ने। पहले इस तरह कोई डिवीजन नहीं होता था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़माने में। अब हेल्थ एंड ओटीसी का एक सेपरेट डिवीजन जो है वो इसको देख रहा होता है। इसके अलावा फार्मेसी सर्विसेज है। फार्मेसी सर्विसेज जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे ये हर डिवीजन से क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कॉस्टिंग और प्राइसिंग एक डिवीजन है जो प्राइसिंग देख रहा होता है प्रोडक्ट्स की। देन ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी जो सेक्शन आ गए, बजट एंड अकाउंट्स, MIS जो IT सेक्शन है ड्रैप का। देन लास्ट वन इज एडमिन एंड लीगल अफेयर्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे फार्मेसी इवेल्युएशन एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन को, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। फार्मास्यूटिकल इवेल्युएशन और रजिस्ट्रेशन डिवीजन जो है वो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल्स जो है वो देख रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में मार्केट होने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन लेनी है ड्रैप से। तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डोजेज एप्लीकेशन फाइल होती है, और डोजेज एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिवीजन में जो है वो सबमिट होती है और इवेल्युएट होती है।
इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने का एक टाइमलाइन होता है, अराउंड 8 to 10 months में अप्रूवल मिल जाती है रजिस्ट्रेशन अप्रूवल की, और रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है जो हमारा ड्रैप इशू करता है। रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में जो वैलिड होती है वो 5 years के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, और इस रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी से पहले पहले एक रिन्यूअल एप्लीकेशन हमें फाइल करनी होती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रैप। ये दोनों एक्टिविटीज जो है हमारा ये वाला डिवीजन देख रहा होता है। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। अब क्योंकि ड्रैप ने जो है वो ये न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट्स डाल दिए हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन होगा। कोई भी न्यू मॉलिक्यूल पाकिस्तान में रजिस्टर होने से पहले दैट will be first company will be inspected, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ड्रैप के पैनल मेंबर्स जो है वो विजिट करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैसिलिटी को, और डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज उनकी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने के बाद वो इंस्पेक्शन करने के बाद अप्रूवल देते हैं। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बट अब पाकिस्तान में कोई भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई होगी उसके लिए भी ड्रैप के पैनल मेंबर जो है वो फैसिलिटी इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं बाहर, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर जो है पाकिस्तान से बाहर होगा तो उसकी फैसिलिटी इंस्पेक्शन करने के लिए ड्रैप के मेंबर्स जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे प्लांट की इंस्पेक्शन के लिए। थर्ड वन इज पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन। कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी हमने फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है उसको हमने रजिस्टर करवा दिया, उस रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उस टैबलेट के कलर में कुछ चेंजेस किए, या उसकी शेल्फ लाइफ को हमें पहले रजिस्ट्रेशन की टाइम पे 2 साल थी, फिर हमने इसको 3 साल पे किया, या हमने इसके पैकेजिंग को चेंज किया, उसके लिए वी हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम ड्रैप। दिस इज कॉल्ड द पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशंस। इसके अलावा फार्मेसी वैल्यूएशन और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट उसमें कोई एफडीए की तरफ से या इसके अलावा ईमा की तरफ से किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ गया कि इसमें अगर हमें पैकेजिंग पे ये वार्निंग बॉक्स ऐड करना है, या इसके अलावा इंटरनेशनली किसी प्रोडक्ट में विड्रॉल आ गया, तो ये सारे रेगुलेशंस जो है वो हमारा ये डिवीजन देख रहा होता है। Next one is the licensing division of DREP. Currently, Pakistan में around 8 to 900 pharmaceutical companies जो है वो function कर रही हैं जिसको लाइसेंस इशू हुआ है for manufacturing. लाइसेंस इशू करने के लिए we have to get the approval from DREP. सो न्यू लाइसेंस इशू करने के लिए लाइसेंसिंग डिवीजन से हमें अप्रूवल लेनी है, जिसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है ड्रैप। न्यू लाइसेंस के लिए भी जो है वो ये हमारा लाइसेंसिंग डिवीजन लुक आफ्टर कर रहा है। इसके अलावा हर लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल की होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लाइसेंस का जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है। 5 साल से पहले पहले हमें इसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। रिन्यूअल के लिए हमने अप्लाई किया ड्रैप की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, देन हमें इसके लिए दोबारा 5 साल के लिए ये जो है ना वो अप्रूव होता है, लेकिन इसके लिए रिन्यूअल के लिए भी पैनल इंस्पेक्शन होती है फ्रॉम ड्रैप पैनल मेंबर्स। नेक्स्ट डिवीजन इज Q&LT. Q&LT इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर GMP इंस्पेक्शन। साल में एक दफ़ा जो है ना वो GMP इंस्पेक्शन होती है किसी भी फैसिलिटी की, जिसको लुक आफ्टर करता है हमारा ये वाला डिवीजन। इसके अलावा जो भी लैब टेस्टिंग करवानी होती है ड्रैप में, तो सैंपल्स जो है वो सबमिट करती है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसके लिए LT डिवीजन जो है वो नोटिफिकेशन सेंड कर रहा होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, एंड दिस डिवीजन इज लुकिंग आफ्टर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ रजिस्टर्ड प्रोडक्ट। ये उनके लिए है जो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो गई है ड्रैप से, उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को लुक आफ्टर करने के लिए हमारा ये डिवीजन देख रहा होता है। नेक्स्ट इज द मेडिकल डिवाइसेज एंड मेडिकल कॉस्मेटिक डिवीजन। मेडिकल डिवाइसेस जो है वो 2012 से पहले
जो हमारा एक्ट था उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको देख रही थी और ये भी ड्रग्स कहलाती थी। तो सेपरेट डिवीजन पहले ड्रैप में नहीं था मेडिकल डिवाइसेस के लिए। नाउ एक स्पेसिफिक हमारे पास डिवीजन है ड्रैप का, जो लोग आफ्टर कर रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस को। इस मेडिकल डिवाइसेस में क्या-क्या रूल्स हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ये डिवीजन सबसे पहले जो कंपनीज हैं जो मेडिकल डिवाइसेस में काम कर रही हैं उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। पीछे हमने जो जिक्र किया था अभी कि हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस में भी कोई भी कंपनी मेडिकल डिवाइसेस में अगर काम कर रही है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेने की ज़रूरत है फॉर लोकल एज वेल एज इम्पोर्ट। वो मैन्युफैक्चरर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना है फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए इनको अप्लाई करना होगा मेडिकल डिवाइसेस के डिवीजन में, और मेडिकल डिवाइसेस डिवीजन में अप्लाई करने के बाद इस डिवीजन के इंस्पेक्टर्स और जो भी पैनल मेंबर्स होंगे वो फैसिलिटी को इंस्पेक्शन करेंगे। अच्छा, ये तो बात हमारी हो गई लोकल मैन्युफैक्चरर्स की। और मेडिकल डिवाइसेस में हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग करंटली बहुत कम है, क्योंकि ये अभी इंटरनेशनली हम इसको अगर कह लें कि मेडिकल डिवाइसेस तो बहुत वास्ट फील्ड है बाहर, लेकिन पाकिस्तान में ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इसके लिए रिसेंटली जो है एसोसिएशन भी बन गई है जिसे हम एसडेप कहते हैं, हेल्थ डिवाइस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो लुक आफ्टर कर रही है मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज को। तो इम्पोर्ट के मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी हमें एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, और ये इम्पोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है। इस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस को लेने के लिए पैनल मेंबर्स ड्रैप के इंस्पेक्ट करेंगे वेयर हाउस जिसमें ये प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर हो जाएंगी। क्योंकि फैसिलिटी बाहर होगी तो फैसिलिटी की इंस्पेक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सिर्फ इसमें एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए उस फैसिलिटी को ये चेक करेंगे जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट होने के बाद स्टोर हो जाएंगी। एंड देन वी हैव द फिनिश इंपोर्ट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट इंपोर्ट होने के बाद इसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी इसकी सेम रिक्वायरमेंट है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन, जिस तरह हमने डिस्कस किया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, इसी तरह इन प्रोडक्ट्स के लिए भी पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन की रिक्वायरमेंट्स है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी ग्रांट हुई होगी एक मैन्युफैक्चरर को या एक इंपोर्टर को, वो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अगर किसी और कंपनी को देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें ड्रैप से अप्रूवल लेनी होगी, और उसके लिए ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल करना होगा। इसके अलावा डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डी रजिस्ट्रेशन हो गई, या इसके अलावा और कोई न्यू पॉलिसी है मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड, वो भी ये वाला हमारा डिवीजन जो है वो देख रहा होता है। बायोलॉजिकल ड्रग्स का एक सेपरेट डिवीजन है जो देख रहा होता है हमारे ड्रैप में। ये ऑलमोस्ट इनकी फंक्शन जो है सेम है, लेकिन डेडिकेटेड लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग स्पेसिफिक हुई हुई है बायोलॉजिकल ड्रग से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये बायोलॉजिकल ड्रग्स डिवीजन में भी रजिस्ट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक होता है, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, इंस्पेक्शन, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशंस। इसके अलावा बायोलॉजिकल ड्रग्स का डिवीजन अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है पाकिस्तान में। इसीलिए बायोलॉजिकल ड्रग्स हम आगे भी इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि करंटली इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स ये देख रहा है बायोलॉजिकल डिवीजन हमारा पाकिस्तान में। नेक्स्ट डिवीजन जो हमारा ड्रैप का है वो कंट्रोल ड्रग्स डिवीजन। कंट्रोल ड्रग्स डिवीजन हमारा जो है ना कोटा अप्रूवल को देख रहा होता है फॉर नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक और प्रीकर्सर केमिकल्स। इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको स्पेसिफिक कोटा चाहिए होता है फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, आप उसको अप्लाई करें तो मिनिस्ट्री ने आपको जो है वो कोटा दिया 500 केजी का। उस 500 केजी को आप पूरे साल में यूटिलाइज करना है, और उसी एपीआई का 500 केजी आपको उस
ईयर में बनाना है। अगर उस एपीआई का फॉर एग्जांपल हम कहें, अगर फेक्सोफेनाडीन की आपको ड्रैप ने अप्रूवल दी है 500 केजी कोटा की, तो उससे जो आपको फिनिश प्रोडक्ट बनानी है वो 500 केजी के अंदर ही आएगी। अगर आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी जो है वो इसमें बेटर नहीं होगी रिक्वायरमेंट, तो आप एडिशनल अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे कंट्रोल ड्रग डिवीजन में, लेकिन यू हैव टू get the approval from controlled drug division for these type of products. Next division is pharmacy services division. Pharmacy services division हमारा ये दो मेन फंक्शन है। नंबर वन इज द एडवर्टाइजमेंट। कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट है, आपको इन एडवर्टाइजमेंट के अप्रूवल के लिए फार्मेसी सर्विस डिवीजन से अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मेसी सर्विसेज की, वो एडीआर रिपोर्टिंग की है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करना है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। उसके लिए हमें इनको जो है वो मंथली अप्लाई करना है। एडीआर रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की 100 मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको 100 प्रोडक्ट्स का डेटा सबमिट करवाना है मंथली बेसिस, ताकि उनको ये बता सकें कि हमारी इन प्रोडक्ट की अभी करेंटली कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन इस मंथ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड ओटीसी डिवीजन। हेल्थ एंड ओटीसी डिवीजन पहले नहीं था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है। इस पर बहुत डिबेट भी हुई मैन्युफैक्चर की लेकिन इसका SRO 412 आने के बाद अब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डिवीजन है हेल्थ एंड ओटीसी का। इसकी जो प्रोसीजर है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर को पहले इनलिस्टमेंट के लिए अप्लाई करना होता है फॉर मैन्युफैक्चर इनलिस्टमेंट, जिसे कॉमन टर्म है वो फॉर्म 6 है। तो फॉर्म 6 की अप्रूवल के बाद जो है वो मैन्युफैक्चरर है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, फार्मा में जो है ना प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की टर्म यूज हो रही होती है, और यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट की टर्म यूज हो रही होती है। प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कॉमन टर्म है वो है फॉर्म 7। कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में मार्केट करने से पहले फॉर्म 7 की अप्रूवल आपको लेनी होगी। इसी तरह अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास अपनी फैसिलिटी नहीं है और उसके बाद वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल टॉल की एप्लीकेशन अप्लाई करेगा, यानी किसी और मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एप्लीकेशन अप्लाई होगी। इसमें दो केसेस होते हैं, नंबर वन इज कॉन्ट्रैक्ट गिवर एंड नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर। जो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट गिवर होगा और वो मार्केटियर होगा, और उसके अलावा जो दूसरा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर होगा, जो इस प्रोडक्ट को बना रहा होगा अपनी फैसिलिटी में। सेम इज द केस ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस तरह हमने फार्मा में देखा कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेडिकल डिवाइसेस में भी हो सकती है, बायोलॉजिकल में भी, और हेल्थ एंड ओटीसी की में भी ये हो सकता है। बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सेम होगा हेल्थ एंड ओटीसी के डिवीजन में। इसके अलावा कुछ जो है वो रेलिवेंट डिविजन्स हैं जो हम एक ब्रीफली इसको गो थ्रू कर लेते हैं। कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग देख रही होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। जो बजट एंड अकाउंट डिवीजन है वो जो बजट्स और फाइनेंसेस होते हैं ड्रैप में इंटरनल, उसको जो है ना वो ये बजट एंड अकाउंट्स लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। MIS डिवीजन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिवीजन है जो ड्रैप के अंडर काम कर रहे होते हैं। रिसेंटली एक MIS डिवीजन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इन्होंने कुछ दिनों पहले एक इन्होंने पोर्टल जो की ट्रेनिंग भी दी थी कंपनीज को, और तकरीबन 1 दिसंबर से ये लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जिसका इन्होंने नाम दिया है पीरियम्स। इस पीरियम्स के थ्रू अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकेंगी, और उसमें ये देख सकेंगे कि लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है उसका क्या स्टेटस है, कोई भी डोजियर की एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है, कि स्क्रीनिंग पर है या इवैल्यूएशन पे है या अप्रूवल पे है। तो इस पीरियम सॉफ्टवेयर या पोर्टल के थ्रू कंपनीज अब अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकेंगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है MIS डिवीजन की। नेक्स्ट डिवीजन इज एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो है ड्रैप के एडमिनिस्ट्रेटिव
जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उसको देखा होता है। लीगल डिवीजन जो है लीगल जितने भी अप्रूवल्स होती हैं किसी भी एसआरओ की उसको देख रहा होता है। इसके अलावा ड्रग कोर्ट के केसेस और अपीलेट बोर्ड के केसेस वो लीगल डिवीजन के थ्रू आ होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रैग के रेगुलेशंस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें हम ब्रीफली देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पहले हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रैग की क्या रेगुलेशंस पहले थे। पहले ड्रैग की जो रेगुलेशन है स्टार्टिंग के 1 से 2 साल या 3 साल में वो ये थे कि एक बहुत बड़ी पेंडिंग लिस्ट थी और ड्रैग को बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी पेंडिंग की लिस्ट को गो थ्रू करना और उनकी अप्रूवल देना, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि रिमाइंडर लेटर्स जो है वो कंपनीज भेज रही थी कि क्योंकि ड्रैप एक्ट बनने के बाद भी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो पेंडिंग थी। ड्रैप ने इसमें जो है ना वो चीज़ें चेंज की, वो ये की कि इन्होंने न्यू स्टाफ जो है वो हायर किया और उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की और इसके अलावा डिफरेंट एसोसिएशन से, फार्मा ब्यूरो से, पीपीएमए से इन्होंने पॉलिसी मेकिंग की और उन्होंने देखा कि इंटरनेशनली क्या गारंटी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंटरनेशनली, ताकि उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए पाकिस्तान में। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पाकिस्तान में अभी क्या रेगुलेशंस हैं वो हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज जो अचीवमेंट इन्होंने की है ड्रैप ने, वो चेंज इन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम नेशनल गाइडलाइंस टू सीटीडी डोसियर। पहले पाकिस्तान में नेशनल गाइडलाइंस जो है वो फॉलो हो रही थी, वो ड्रैप और एमओएस का जो पुराना फॉर्मेट था स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे हम लोग, और उस स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल होती थी और उस पर अप्रूवल जो है वो कंपनीज को मिल जाती थी। अब सीटीडी डोजियर इम्प्लीमेंट हो गया है पाकिस्तान में 2018 के बाद। सीटीडी इज कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है जो आईसीएच ने इम्प्लीमेंट किया था। डिफरेंट कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, पाकिस्तान में भी अब इसको सीटीडी डोजियर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सीटीडी डोजियर एक्चुअली इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट। इसमें मॉड्यूल 2, 3, 4 और 5 जो है ये एक्चुअली दिस फॉर्मेट इज 5 मॉड्यूल्स, जिसमें 2, 3, 4 और 5 मॉड्यूल जो है वो सेम मॉड्यूल है जो फॉलो होता है पूरी दुनिया में। ओनली मॉड्यूल 1 इज डिफरेंट विच इज कंट्री स्पेसिफिक। मॉड्यूल 1 इज कंट्री स्पेसिफिक, इसमें डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट जो है वो इसमें देनी होती है। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या लिस्ट ऑफ पर्सनल्स या जीएमपी सर्टिफिकेट। तो मॉड्यूल 1 जो है वो पाकिस्तान के लिए वो डिफरेंट होगा, और अगर कोई फॉर एग्जांपल श्रीलंका में सीटीडी डोजियर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो मॉड्यूल 2, 3, 4 और 5 श्रीलंका में सेम होगा, लेकिन मॉड्यूल 1 इज डिफरेंट। तो अब वो कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं और दे हैव एक्सपोर्ट, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी इसलिए हो गई है कि मॉड्यूल 2 एक अगर सीटीडी डोजियर उन्होंने बना लिया तो उनके लिए मॉड्यूल 2, 3, 4 और 5 सेम रहेगा। तो वो डोजियर अब वो श्रीलंका में भी भेज सकते हैं, वो डोजियर कीनिया में भी भेज सकते हैं, और वही डोजियर इनको कंबोडिया में भी भेज सकते हैं। ओनली दे हैव टू चेंज मॉड्यूल 1। सेकंड इम्पोर्टेंट रेगुलेशन विच इज स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। कोई भी न्यू केमिकल एडेंट या न्यू मॉलिक्यूल जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आ रहा, इसका सिर्फ इंटरनेशनल इनोवेटर अवेलेबल है, उसके लिए अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ड्रैप मेंबर्स जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, उनकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में रजिस्टर होने से पहले उसका इंटरनेशनल रेफरेंस जो है वो अवेलेबल है। इंटरनेशनल रेफरेंस अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ड्रैप विल नॉट एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर वो प्रोडक्ट इंटरनेशनली अवेलेबल है, जिसमें ईमा में अवेलेबल है
WHO में अवेलेबल है या FDA में अवेलेबल है और उसकी सेम स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ अवेलेबल है इन रेफरेंस कंट्री में, then DRAP will grant the registration application. Next important point is the stable data requirement. पहले पाकिस्तान में स्टेबल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं थी और स्टेबल डेटा जो है वो सबमिट भी नहीं होता था डोजियर एप्लीकेशन के साथ। अब जो है वो डोजियर एप्लीकेशन के साथ स्टेबिलिटी डेटा जो है वो सबमिट हो रहा है किसी भी फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के साथ उसका स्टेबल डेटा सबमिट होगा। इसके लिए जो पाकिस्तान डिफरेंट एक्चुअली इंटरनेशनली डिफरेंट जोन्स हैं जिसमें उन जोन्स में डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ ममालिक को। पाकिस्तान जिस जोन में आ रहा है वो जोन 4A है। इस जोन 4A की जो रिक्वायरमेंट है तो उसके लिहाज से कंपनीज को स्टेबल डेटा सबमिट करवाना है एक्सेलरेटेड कंडीशन और लॉन्ग टर्म कंडीशन में। Next important regulation related to product registration is the import policy. कोई भी फिनिश इंपोर्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये एप्लीकेशन जो है वो ड्रैप में अप्लाई होगी। अप्लाई होने के बाद इवैल्यूएशन के बाद एक रिक्वायरमेंट दिए ड्रैप में कि एज पर इंपोर्ट पॉलिसी उसकी इंस्पेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मैं एक डोजियर एप्लीकेशन अप्लाई करता हूँ ड्रैप में, तो ड्रैप में इवैल्यूएशन होगी। इवैल्यूएशन के बाद ड्रैप मीटिंग में डिस्कस कर दी और डिस्कस करने के बाद ड्रैप ने उसमें एक रिमार्क दिया कि अप्रूव्ड एज पर इंपोर्ट पॉलिसी। वो इंपोर्ट पॉलिसी क्या है? वो इंपोर्ट पॉलिसी ये है कि ड्रैप से अप्रूवल के बाद ड्रैप जो है वो पैनल मेंबर्स बनाएगा और वो पैनल मेंबर्स में अगर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर जो है वो इसका टर्की में है तो टर्की के लिए 2 से 3 मेंबर्स नॉमिनेट करेगा, सीनियर मेंबर्स नॉमिनेट करेगा ड्रैप, और वो मेंबर जो है वो जाएंगे और टर्की में उस मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को चेक करेंगे और उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। यानी इसका मैन्युफैक्चरर टर्की में है लेकिन एप्लीकेंट क्योंकि पाकिस्तान में है तो उसकी फैसिलिटी को चेक करने के लिए ड्राइव के मेंबर्स को वहाँ जाना लाजमी है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है तो उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, उस क्वालिटी को चेक करने के लिए ड्रैप ने ये अपना इंपॉर्टेंट रेगुलेशन लगाया कि उस रेगुलेशंस को हम चेक कर लें और प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर लें। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज एग्जेम्पशन ऑफ इंस्पेक्शन एज पर इम्पोर्ट पॉलिसी। अगर वो प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर टर्की में और उस फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ने टर्की के मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल ली हुई है या वो प्रोडक्ट WHO प्री क्वालिफाइड है तो ड्रैप हमारा उस इंस्पेक्शन को वेव ऑफ कर देगा। यानी टर्की की प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है WHO से तो पाकिस्तान के पैनल मेंबर्स को इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी और WHO प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट को ड्रैप जो है वो इंस्पेक्शन को वेव ऑफ कर देगा। तो इसमें जो टाइमलाइन है एप्लीकेशन और अप्रूवल का वो टाइमलाइन इसमें बच जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की रेगुलेशन है वो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। पाकिस्तान में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट में भी काम कर रही हैं, तो उन एक्सपोर्ट में काम करने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क भी बनाया है ड्रैप ने, और इस एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ड्रैप ने ये कहा है कि आप जो है वो हमें एक एक्चुअल उन्होंने अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि अगर कंपनीज की इतनी एक्सपोर्ट है उस पर्टिकुलर ईयर में तो हम जो है उन कंपनीज को फैसिलिटेट करेंगे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अप्रूवल देंगे 5 या 10 मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोकल अप्रूवल। यानी अगर उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनकी एक्सपोर्ट 1 साल में ज़्यादा है
तो ड्रैप जो है उनको फैसिलिटेट करेगा और वो एप्लीकेशन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की अप्लाई हुई होंगी कंपनीज की ड्रैप में, उनको फैसिलिटेट करेगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट्स की अप्रूवल देगा ड्रैप उन एक्सपोर्टर्स को, ताकि जो है वो उनकी एक्सपोर्ट फैसिलिटेट हो। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीटीडी डोजियर। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे भी इम्प्लीमेंट हो गया सीटीडी डोजियर्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे भी। करंटली बायोसिमिलैरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं एपीआई की, जो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर टर्म यूज करें तो वो ड्रग सब्सटेंस है। ड्रग सब्सटेंस की बायोसिमिलरिटी की डेटा सबमिट करवाना है फिनिश फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को टू गेट द अप्रूवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम ड्रैप। कोई भी फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अप्रूवल के बाद और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले मिनिस्ट्री है इसकी प्राइस फिक्स कर रहा होगा। तो उस प्राइस फिक्स करने के लिए प्राइसिंग पॉलिसी है जो 2018 में आई है। उस 2018 की पॉलिसी के मुताबिक ड्रैप जो है उसकी न्यू प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर रहा होगा। अच्छा, करंटली अभी पेंडेमिक सिचुएशन थी और क्योंकि ड्रैप ने ऑलरेडी फॉर्म सीडीटी डोजियर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो क्योंकि सीडीटी की डोजियर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और न्यू जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो उसको कंपनीज को फैसिलिटेट करने के लिए ड्रैप ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो प्रोडक्ट जो कोविड की सिचुएशन में रेकमेंडेड है, तो उसको फास्ट ट्रैक की अप्रूवल देने के लिए ड्रैप ने मैन्युफैक्चरर को ये कहा कि आप पुराने फॉर्मेट पे डोजेज अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल फॉर्म 5, फॉर्म 5D या फॉर्म 5FA, फॉर्म 5A, उसको अप्लाई करें और उस पर जो है वो ड्रैप जो है वो अप्रूवल देगा। इस तरह बहुत सारी कंपनीज ने इस एप्लीकेशन को अप्लाई किया और कोविड की अप्रूवल को फास्ट ट्रैक पे अप्रूव किया ड्रैप ने। सेम इज द केस विद रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक क्योंकि अप्रूवल इंटरनेशनली भी इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी हुई थी इन डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, तो पाकिस्तान ने भी उसी रूल को फॉलो किया और पाकिस्तान में भी पेंडेमिक सिचुएशन में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट की ड्रैप ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इज कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। इसमें भी कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी अप्लाई कर सकती है। कोई एरिया अगर कंपनी के पास नहीं है और अभी वो डेवलप कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेफेलोस्पोरिन एरिया अगर किसी कंपनी के पास नहीं है, तो वो किसी और से टॉल मैन्युफैक्चर करवा सकता है कोई भी प्रोडक्ट, उसके लिए कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो है वो अप्लाई करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज WHO कोलैबोरेटिव प्रोसीजर फॉर एक्सेलरेटेड रजिस्ट्रेशन। ड्रैप ने एक रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था WHO के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट साइन से में जो है ना के तहत अब WHO का जो है वो प्रोडक्ट्स जो WHO प्री क्वालिफाइड हैं और वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स इंटरनेशनली उनकी अवेलेबल है, वो अगर पाकिस्तान में अपना जो है किसी एजेंट या किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो उन प्रोडक्ट्स WHO प्री क्वालिफाइड को ड्रैप जो है वो फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल देगा। ये डिटेल में जो है वो डिस्कस हुआ था ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड की 289 की मीटिंग में। रिसेंटली कंपनीज ने भी इस प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई किया और WHO प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट को ड्रैप ने अप्रूवल दी और फास्ट ट्रैक पे जो है वो अप्रूवल दी। 30 डेज के अंदर उन्होंने एवेल्यूशन कंप्लीट की और तकरीबन 2 महीने के अंदर ड्रैप ने WHO प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट को अप्रूवल दी। इसमें एक स्पेसिफिक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला वो ये है कि WHO व प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट के लिए ड्रैप ने इंस्पेक्शन भी वेव ऑफ कर दी। फ्यूचर में प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या होने के लिए जा रहा है ड्रैप में। ECTT फॉर्मेट यानी जितनी भी एप्लीकेशन है वो अब ऑनलाइन सबमिट होंगी। ECTT फॉर्मेट करंटली मलेशिया में इम्प्लीमेंट हुआ है और माइट बी पॉसिबल ड्रैप जो है उसको आने वाले 1-2 सालों में इम्प्लीमेंट कर दें। करंटली CTT एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ
न्यू डोजियर के अप्रूवल के लिए सीटीडी डोजियर सबमिट होता है, लेकिन अब इन फ्यूचर रिन्यूअल की अप्रूवल के लिए भी सीटीडी डोजियर सबमिट करवाना होगा कंपनीज को। फ्यूचर में ऑनलाइन सबमिशन होगी ड्रग मास्टर फाइल की। ड्रग मास्टर फाइल क्योंकि पार्ट होता है सीटीडी डोजियर का, जिसमें ड्रग सब्सटेंस की जो है वो जो भी डिटेल्स हैं वो सबमिट होती हैं, तो ऑनलाइन सबमिशन हो रही होगी फ्यूचर में डीएमएफ की। बायोसिमिलरिटी डेटा भी करंटली हमने डिस्कस किया, ड्रग सब्सटेंस पे है। फिनिश वर्ड पे भी जो है वो अब फिनिश फार्मास्यूटिकल फिनिश बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे भी बायोसिमिलरिटी के डेटा की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। बायोक्लिनिकल स्टडीज अभी ड्रैब ने वेव ऑफ की भी है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली भी बायोक्लिनिकल स्टडीज बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गई है, तो बी स्टडीज भी कंपनीज को सबमिट करवानी होगी। पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन की गाइडलाइन अभी हम फॉलो कर रहे हैं, वो नेशनल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए भी ड्राफ्ट गाइडलाइन आ गई है और ड्रैब जो है वो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस गाइडलाइन को फॉलो करेगा। ये हमने डिस्कस की प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस। अब हम देखते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस में पहले क्या हुआ था और अभी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पास में जो सारी प्रोडक्ट्स थी ये सब ड्रग्स कहलाती थी और ये सब इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको फॉलो कर रहा था। तो इसमें अप्रूवल जो भी दे रहा था वो एज अ ड्रग कंपनीज को अप्रूवल मिल रही थी मेडिकल डिवाइसेस की। ड्रैप ने जो है वो डिफरेंट डिस्कशन की मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर के साथ, और उसके बाद इनके जो है ना वो मेडिकल डिवाइसेस के रूल्स भी बने। करंटली जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो ये कि मेडिकल डिवाइसेस के स्पेसिफिक रूल्स अब आ चुके हैं ड्रैप के, जो जिसे हम MDR 2018 कहते हैं। इस रूल्स के तहत मेडिकल डिवाइसेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी डिटेल जो है वो दी गई है रूल्स में। बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से मेडिकल डिवाइसेस आते हैं। इन रूल्स के तहत मैन्युफैक्चरर्स को या इम्पोर्टर्स को जो है वो स्टेब्लिशमेंट लाइसेंस अप्लाई करना होगा ड्रैप में, और उस स्टेब्लिशमेंट लाइसेंस अप्लाई करने के बाद अप्रूवल मिलेगी और उस अप्रूवल को फॉर्म 3 पे अप्रूवल होगी। इस स्टेब्लिशमेंट लाइसेंस को लेने के बाद स्टेब्लिशमेंट कंपनी को जो है वो डोजियर अप्लाई करना होगा और डोजियर के तहत ही उनको अप्रूवल लेनी होगी और प्रोडक्ट को मार्केट करना होगा। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट हो रही है, उसका वो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री के मैन्युफैक्चरर से, तो पाकिस्तान में उसका एक एजेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सोल एजेंसी एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए। यानी अगर किसी मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट है तो पाकिस्तान में उसने एक कंपनी को सोल राइट्स दिए हुए हैं कि वो प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में वही मार्केट करेगा, यानी वो किसी और को राइट्स नहीं देगा उस सेम प्रोडक्ट के पाकिस्तान में। ठीक है। इसके अलावा इंस्पेक्शन की एग्जेम्पशन भी है। अगर किसी के मैन्युफैक्चर के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी या CE मार्क ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसके लिए इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन PPEs को जो है वो ड्रैप ने अप्रूवल दी थी कोविड की सिचुएशन में, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल दी थी इस पेंडेमिक सिचुएशन में ड्रैप ने। फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाली मेडिकल डिवाइसेस में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे फ्यूचर में मेडिकल डिवाइसेस में। अभी जो है वो ड्रैप की प्राइसेस जो है वो डीकंट्रोल्ड हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल फ्यूचर में इनकी मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसेस भी जो है वो कंट्रोल्ड हो जाए। नेक्स्ट इज द लेबलिंग गाइडलाइंस। अभी इसकी ड्राफ्ट गाइडलाइंस तो जो है वो आ गई हैं, लेकिन ड्रैप जो है वो उसकी इम्प्लीमेंट कर देगा एक्चुअल लेबलिंग गाइडलाइन स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल डिवाइसेस। हेल्थ एंड OTC की रजिस्ट्रेशन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशन है, पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हेल्थ एंड OTC भी ड्रग्स कहलाती थी, लेकिन SRO 412 आने के बाद इनको ये अब
अंडर द और सारी मेडिकल, सारी हेल्थ एंड ओटीसी, मल्टी वाइटामिल्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, बेबी फूड, ये सब जो है वो SRO 412 के अगेंस्ट जो है वो फॉल करती है। करंटली इसका जो रेगुलेशन है वो 412 SRO है। इसके लिए सबसे पहले कंपनी को इन्वेस्टमेंट लेने की ज़रूरत होगी, और वो इन्वेस्टमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 6 है। उस फॉर्म 6 के तहत जो है वो कंपनी इन्वेस्टमेंट आपको लेनी होगी। अच्छा, ये फॉर्म 6 दोनों कंपनीज के लिए, आइदर मैन्युफैक्चरर जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर है तो उसको भी फॉर्म 6 लेना होगा, और अगर मैन्युफैक्चरर बाहर है लेकिन उसका एजेंट जो है पाकिस्तान में है, तो एजेंट जो पाकिस्तान में है वो अप्लाई करेगा और उसको भी फॉर्म 6 पे अप्रूवल मिलेगी। फॉर्म 6 के अप्रूवल लेने के बाद प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट लेनी होगी ड्रैप से, जिसे हम फॉर्म 7 कॉमन टर्म में कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द फॉर्म 7 अप्रूवल ऑफ हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट फ्रॉम ड्रैप। फ्यूचर में क्या होने के लिए जा रहा है ड्रैप में, हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट अभी करंटली ये भी डिकंट्रोल्ड प्राइसेस है। फ्यूचर में ये माइट भी पॉसिबल है कि इस पे भी रेगुलेशंस ट्रैप लगा दे और इस पे भी प्राइसिंग पॉलिसी कोई नई आ जाए तो ये कंट्रोल प्राइस हो जाएगी। हेल्थ एंड ओटीसी अभी कंपनी जो है वो फॉलो कर रही है 1986 की जो गाइडलाइंस है लेबलिंग की, उसको फॉलो कर रही है। इसके लिए भी स्पेसिफिक फ्यूचर में कोई गाइडलाइंस आ जाएगी लेबलिंग की। फार्मेसी सर्विसेज की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो ड्रैप के अंडर हो रही हैं। पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शन पाकिस्तान में कोई भी आता था तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती थी, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाती थी ड्रैप में, क्योंकि कोई डिवीजन इस तरह का ऐसा था नहीं ड्रैप में जो इस सिस्टम को देख रहा था। करंटली जो इसके आ गए हैं वो बायो स्टडी रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो गया है, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल नेशनल फार्माकोविजिलेंस गाइडलाइन भी आ गई हैं। बायो स्टडी रूल्स 2017 इम्प्लीमेंट किया है ड्रैप में, जिसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड आपको क्या प्रोसीजर है, किस तरह ड्रैप में अप्लाई करना है, किस तरह अप्रूवल्स देनी है, स्टडीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर किसी कंपनी को कोई भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म करवानी है तो उसका क्या टाइमलाइंस होगा, कितने वॉलंटियर्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे, कहाँ से आपको किस CRO के तहत आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सब चीज़ें बायो स्टडी रूल्स में आ गई हैं। तो ये डिटेल्ड गाइडलाइन है, तो इस गाइडलाइन को हम एज अ बेंचमार्क पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि हम इसको क्लिनिकल स्टडीज जो है परफॉर्म करवा सकें। पाकिस्तान नेशनल फार्माकोविजिलेंस गाइडलाइन 2019 ये पिछले साल आई थी। इसमें दिया गया है कि फार्माकोविजिलेंस की पाकिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट्स सबमिट करवानी है कंपनीज को, आइदर मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस। जो प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहे हैं कंपनी, उसका उस महीने में कितनी रिएक्शंस आए और कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करने हैं, और कंपनी के क्या पॉलिसीज होनी चाहिए फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड, और कौन से क्या कौन से लोग जो है वो फार्माकोविजिलेंस देख रहे हो, उनकी क्या क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। कंपनी में जो कोई भी पर्सन है इस फार्माकोविजिलेंस को देख रहा है, उसके लिए क्वालिफाइड फार्माकोविजिलेंस पर्सन होगा, उसके क्या क्रेडेंशियल होंगे, उससे क्या एक्सपीरियंस होगा। ये सब चीज़ें इसमें कवर की गई हैं इस गाइडलाइंस के अगेंस्ट। बायोक्वेलेंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो अप्रूवल लेनी है आपको ड्रैप की। ड्रैप से अप्रूवल लेनी है, उसके बाद आपको बी सेंटर से जो है बायोक्वेलेंस स्टडीज परफॉर्म करवानी है। CRO इज द कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी क्लिनिकल स्टडीज या बायोक्वेलेंस स्टडीज परफॉर्म करवानी है तो ड्रैप ने अप्रूवल दी भी है CROs को, यानी CROs अप्रूव किए में है ड्रैप ने। 4, 5 या 10 CROs ऐसे हैं जिनको ड्रैप ने अप्रूवल दिए हुए हैं। ये CROs से ही हम लोग को जो है वो क्लिनिकल स्टडीज परफॉर्म करवानी है या बी स्टडीज परफॉर्म करवानी है। तो
हम इन गाइडलाइन को पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्टिविटीज करेंटली फार्मेसी सर्विसेज देख रहे हैं। इसके अलावा जो है मंथली सबमिशंस करवानी है कंपनीज को एडवर्स रिएक्शन की, ये सब सबमिशन फार्मेसी सर्विसेज के डिविजन्स में हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा करंटली जो पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें रेमडेसिविर की अप्रूवल दी थी, इमरजेंसी यूज अप्रूवल अप्लाई मिनिस्टर ने दी हुई थी बहुत सारी कंपनीज को। तो रेमडेसिविर क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल थी, तो रेमडेसिविर से रिलेटेड जब भी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया था ड्रैप ने, तो उसमें वो लिखा गया था कि मंथली इसकी रिपोर्टिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग आपको करवानी होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ताकि आपको पता चल सके कि रेमडेसिविर के कितने केसेस आए और जो है वो पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल सिंध में कितने आए और पंजाब में कितने हैं, डिफरेंट रीजन्स में जिन जिन लोगों ने रेमडेसिविर यूज की, तो कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसमें जो है वो आया तो नहीं रेमडेसिविर से रिलेटेड। फ्यूचर में फार्मेसी सर्विसेज क्या करने के लिए जा रहे हैं, वो ये कि क्योंकि WHO अप्रूव्ड 20 सेंटर्स अवेलेबल हैं जो WHO ने अप्रूव किए हैं बायोक्लिनिकल स्टडीज, पाकिस्तान भी जो है वो भी उन गाइडलाइन को फॉलो करेगा और हम उस स्टैंडर्ड पर जा रहे होंगे इंशाल्लाह, जिसमें वो हम पाकिस्तान का कोई बायोक्लिनिकल सेंटर ऐसा होगा जो WHO अप्रूव होगा। इसके अलावा ADR सिस्टम्स को भी जो है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए जाएगा हॉस्पिटल लेवल पे भी। अभी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने लेवल पे सबमिट करवानी है एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोडक्ट से रिलेटेड। फ्यूचर में अगर हम इस स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो हॉस्पिटल भी जो है वो ड्रैप में एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबमिट करवाने के लिए जा रहा होगा। ये एक ग्लिम्स है माइलस्टोन अचीवमेंट जो ड्रैप ने इन सालों में की। नंबर 1 इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CTD डोजेज जो 2018 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। एस अगर हम कहेंगे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन को, प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन पहले जो है वो इंस्पेक्शन नहीं होती थी लोकल मैन्युफैक्चर की, अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन जो है वो हो रही है। ये भी एक ड्रैप की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। न्यू गाइडलाइंस डे बाय डे न्यू गाइडलाइंस आ रही हैं और इम्प्लीमेंट हो रही हैं पाकिस्तान में। तो ड्रैप जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए पाकिस्तान में वो गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहा है। बायोलॉजिकल रजिस्ट्रेशन और बायोसिमिलरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पिछले अगर हम देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड की मीटिंग में बहुत सारी न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो बायोसिमिलरिटी जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो गई है पाकिस्तान में और ड्रग सब्सटेंस की बायोसिमिलरिटी का डेटा जमा हो रहा, सबमिट हो रहा है ड्रैप में। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि बायोलॉजिकल से रिलेटेड हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और बायोसिमिलरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। एंड WHO कोलैबोरेशन विद ड्रैप, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ड्रैप की कि WHO के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और WHO प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट को ड्रैप में फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल दे रहा है। मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ एंड OTC की रजिस्ट्रेशन को सेपरेट डिवीजन देख रहा है और वो सेपरेट डिवीजन जो है डेडिकेटेड टीम है और डेडिकेटेड लोग हैं जो इससे इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से वेल वर्स्ड हैं और उसकी डोजियर एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं और डोजियर एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद अप्रूवल दे रहे हैं। अब हम एक रिक्वायरमेंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से SRO हैं जो ड्रैप ने फॉलो किए और करंटली जो फॉलो हो रहे हैं। नंबर 1 है CTD डोजियर गाइडलाइन। ये CTD डोजियर की गाइडलाइन है 2018 में इम्प्लीमेंट की। अब इस CTD डोजियर के तहत कोई भी कंपनी है वो डोजियर अप्लाई करेगी किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो इस गाइडलाइन के तहत अप्लाई करेगी और CTD का डोसियर सबमिट करवाना होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को। आइदर इट इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और इट इज फिनिश इम्पोर्ट प्रोडक्ट, वी हैव टू अप्लाई CTD डोसियर। CTD डोसियर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डोसियर फॉर्मेट, जो मैंने आपको पहले बताया है
इसमें 5 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 जहाँ भी डोसियर अप्लाई हो रहा होगा, जहाँ भी CTD इम्प्लीमेंट हुआ होगा, मॉड्यूल 2, 3, 4 और 5 सेम रहेगा, ठीक है। ओनली चेंज विल बी मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें जो है वो रिक्वायरमेंट्स देनी होगी, हमें अपने जो भी JMB सर्टिफिकेट है वो देना होगा, लोकल क्रेडेंशियल्स है वो सबमिट करवानी होगी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं वो सबमिट करवानी होगी। तो मॉड्यूल 1 वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग पॉलिसी 2018। ये करंटली प्राइसिंग पॉलिसी 2018 ये अभी इम्प्लीमेंट हुई है पाकिस्तान में। ये प्राइसिंग पॉलिसी जो है उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रजिस्टर होने के लिए जा रहे हैं। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर होंगी, और ये उन प्रोडक्ट्स के लिए भी है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमें उसका प्राइस किस तरह इंक्रीज करना है, ये पूरा फ्रेमवर्क ड्राफ्ट में इस पॉलिसी के अगेंस्ट बताया गया है कि एनुअल प्राइस इंक्रीज किस तरह करना है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, ठीक है। ये CPI के अगेंस्ट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी है ड्राफ्ट से। तो ये एक पूरी गाइडलाइन है प्राइसिंग पॉलिसी की। ये प्राइसिंग पॉलिसी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइसिंग से रिलेटेड किसी को भी अगर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी है। थर्ड वन इज द इम्पोर्ट पॉलिसी। इम्पोर्ट पॉलिसी जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वो हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन उनका जो एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान में है। वही एप्लीकेंट पाकिस्तान में डोसियर अप्लाई करेगा और उस डोसियर अप्लाई करने के बाद अप्रूवल लेगा ड्राफ्ट से, लेकिन उस अप्रूवल लेने के बाद और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले उसकी फैसिलिटी इंस्पेक्शन होगी, और ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्ट पॉलिसी में दी गई हैं। और ड्राफ्ट के इंस्पेक्टर्स जाएंगे बाहर इंस्पेक्शन करने के लिए मैन्युफैक्चरर को, और उस मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर सर्टिफिकेट इशू होगा किसी भी फिनिश इंपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2015, ये कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी है आई है। ये पॉलिसी एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो प्रोडक्ट्स कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो उसके लिए जो है वो किसी और से टॉल मैन्युफैक्चर करवाएंगी। ये कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग में डिटेल रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट डोजियर की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, लेकिन प्रोसीजर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। SRO 412 जो हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये 2014 में आया था। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट होगी इसमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की और हेल्थ एंड OTC की प्रोडक्ट्स की। देन मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, मेडिकल डिवाइसेस के रूल्स 2018 में है। ये 2018 में आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होगा मेडिकल डिवाइसेस की कंपनीज को, और उस इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस में लेने के बाद डोजियर अप्लाई करेंगे, और डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स की उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डोजियर अप्लाई होंगे डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स के, और अप्रूवल मिलेगी एज पर मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2018। आफ्टर गेटिंग दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ड्राफ्ट, कोई भी मेडिकल डिवाइसेस की प्रोडक्ट्स के बाद वो मार्केट कर सकते हैं। बायो स्टडी रूल्स हम पीछे ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डिटेल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि क्लिनिकल स्टडीज़ की क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म करवानी है पाकिस्तान में तो आपको फार्मेसी सर्विसेज डिवीजन में अप्लाई करना होगा, उसका प्रोटोकॉल सबमिट करवाना होगा, कितने वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, किस फेज की स्टडी की अप्रूवल आपको लेनी है, वो कंप्लीट डिटेल की रिक्वायरमेंट्स आपको इस बायो स्टडी रूल्स 2017 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज द पाकिस्तान नेशनल फार्माकोविजिलेंस गाइडलाइंस, ये भी 2019 में आई है।
इसमें ये भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फार्मेसी सर्विसेज रूल्स ये फॉलो करता है। इसमें फार्माकोविजिलेंस का पूरा रूल दिया हुआ है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए फार्माकोविजिलेंस का, किस तरह एडीआर रिपोर्टिंग होगी, किस तरह जो है वो एक पेशेंट है अपना बताएगा कि हमारे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई उसको रिएक्शन आ गया हो तो उसको किस फ्रेमवर्क के थ्रू और कहाँ उसको जो है ना वो अपना बताना होगा कि हमें जो है ना इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें ये पर्टिकुलर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया। देन वो कंपनी को जो है वो इन्फॉर्म करेगा। कंपनी फिर बता रही होगी कि इस मंथ में हमें जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया, तो कंपनी मंथली रिपोर्टिंग जो है वो कर रही होगी अपनी प्रोडक्ट्स की। देन ये 3 डिफरेंट एसआरओज हैं, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सर्कुलर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनुअली कंपनी को जो है ना वो फैसिलिटेट करता है ड्रैप जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उन एक्सपोर्ट की बेसिस पे 15 मॉलिक्यूल की अप्रूवल देता है ड्रैप फ्रॉम वो एप्लीकेशन जो लोकली अप्लाई की भी होती हैं कंपनी को। WHO collaborated procedure for accelerated registration, ये 289 की ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस हुआ था। इसके तहत WHO प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में स्पीड अप प्रोसीजर के तहत अप्रूवल मिल सकती है इन प्रोडक्ट्स को। लेबलिंग रूल्स SRO 470 2017, ये वो SRO है जो बारकोडिंग और सीरियलाइजेशन का SRO जो है वो पाकिस्तान में आया था। अभी करंटली ये SRO इम्प्लीमेंट हुआ तो है लेकिन पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है, और इसके लिए बार कोडिंग या सीरियलाइजेशन जो है वो आ गई है, और आउटर कार्टन पे अभी करंटली कंपनीज जो है रूल के तहत फॉलो कर रही हैं और डेटा मैट्रिक्स अपने आउटर कार्टन पे डाल रही हैं। जब ये रूल इसकी जो टाइमलाइन है वो 2023 तक ये कंप्लीट फॉलो हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट सीरियलाइजेशन जो है वो हो रही होगी उन प्रोडक्ट, सारी प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में जो हो रही होंगी, तो ये हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिविलाइजेशन का है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2023 में। Thank you very much for listening. This is the end of my presentation. Please, sir, answer the question answer. Okay. I think क्वेश्चंस जो भी आप लोग की तरफ से आया उसको हम देख लेते हैं। एक जुहेब साहब ने एक क्वेश्चन रेज किया रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल whitening cream or sunblock cream. Currently, this product falls under the enlistment requirements. SRO 400 आने के बाद ये प्रोडक्ट जितनी भी हैं, वाइटनिंग क्रीम होगी, इस तरह के जो डिफरेंट हेल्थ एंड OTC के प्रोडक्ट्स हैं, ये SRO 412 के अगेंस्ट है। सो वी हैव टू गेट द enlistment from REP for these type of products. And next question is from next question is from Zoeb as well regarding the recommendation use of Nutra product. इस नोटिफिकेशन पे भी करंटली डिबेट चल रही है, और एक उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था रिगार्डिंग द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ड्रैप ने रिकमेंड किया था कि हम कोई स्पेसिफिक उसमें जो है वो एक लाइन ऐड कर दें फॉर दिस प्रोडक्ट। अभी उस पर लाइन ऐड करने के लिए कंपनीज ने जो है वो ड्रैप को लेटर्स भी लिखे हैं, हो माइट बी पॉसिबल इस पर थोड़ा सा स्टे हो जाए और इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो जब तक ये कंप्लीट गाइडलाइन ना आ जाती तो अब ड्रैप की एक स्पेसिफिक
गाइडलाइंस आएंगी डिटेल्ड रिगार्डिंग दी लेबलिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जब तक ये डिटेल्ड गाइडलाइन नहीं आ जाती तो इसको हम एज सच अभी होल्ड पे रखेंगे। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फेट ऑफ न्यूट्रा प्रोडक्ट्स फॉर फॉर्म 7। ये जो नोटिफिकेशन आया था 2014 के बाद, फॉर्म 7 में बहुत सारी कंपनीज की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग पर हैं जो उन्होंने अप्लाई की हुई है फॉर्म 7 पर। ड्रैप में अगर किसी का जाना होगा तो हम ये देखेंगे कि उनके पास उन्होंने एक स्पेसिफिक डेस्क बनाया हुआ है जो रिसीविंग के लिए फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। ड्रैप जो है इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहा है और फॉर्म 7 की स्पीड अप के लिए जो है वो प्रोसीजर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप रिमाइंडर लेटर्स जो है वो ड्रैप को लिखें कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो इस ईयर में हमने अप्लाई की हुई हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स हम लोग जो है वो फुलफिल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको हमें फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो है वो अप्रूवल्स दें। ये तो हमें आइडिया है कि लोगों ने अप्लाई की हुई हैं, 3 से 4 साल लोगों को लग गए हैं अप्रूवल लेने में, लेकिन ड्रैप में जो है इन्होंने अपने इवेल्यूटर्स भी बढ़ाए हैं, इनकी ट्रेनिंग्स भी की हैं और अब कोशिश ये लोग ये कर रहे हैं कि कंपनीज को फास्ट ट्रैक पे भी अप्रूवल दी जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ड्रैप कितनी जल्दी अब जो है वो इसको फास्ट ट्रैक पे ले सकते हैं और जितनी भी पेंडेंसी है एप्लीकेंट्स की उसको पेंडेंसी को कंप्लीट करते हुए लोगों को अप्रूवल दे। एक और क्वेश्चन है मिस नरगिस का रिगार्डिंग दी SRO 470 जो इम्प्लीमेंटेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस पे जो है वो 80 to 90% इसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। और आप अगर मार्केट में देखेंगे कि इस सीरियलाइजेशन में डेटा मैट्रिक्स इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं कंपनीज, तो डेटा मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट जो कि ऑलरेडी आ चुकी थी और ड्रैप ने इम्प्लीमेंट कर दी थी, तो डेटा मैट्रिक्स कंपनीज जो है वो अब अपनी प्रोडक्ट्स पे डाल रही हैं। एक और क्वेश्चन है जो शिराज साहब का है कि सीरम्स कम अंडर कॉस्मेटिक्स, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अभी डिबेट चल रही है क्योंकि कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड शैम्पूज, और पहले जब ये रूल्स आए थे तो उस रूल्स के अंडर ये था कि ये सारी रेगुलेशंस जो है वो SRO 412 यानी ऑल्टरनेट मेडिसिन्स के अंडर ये आएगा और हेल्थ एंड OTC इसको देख रहा हुआ। लेकिन रिसेंटली ये एक और अभी नोटिफिकेशन आया है जिसके अंडर अभी ये बात चली कि मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स जो है वो इसको देख रहा होगा। तो आने वाले कुछ वक्तों में इसका नया जो है वो रूल आ जाएगा। माइट बी पॉसिबल कॉस्मेटिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब मेडिकल डिवाइसेस जो है वो देख रहा हूँ। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम लिसनर्स? Okay, sir. Thank you so much for giving us such a wonderful lecture. Now I'm moving toward. You're welcome. Now I'm moving toward founder of GMP Compliance Academy, Mr. Kamran Atif. Please introduce GMP Compliance Academy profile and also explain why we start this initiative program, Young Pharma Emerging Leader Program. And Mr. Kashif, please unshare your screen. Thank you, sir. Assalamu alaikum everybody. Can you hear me? Yes sir, we can all hear you. जी, thank you Kashif. बहुत अच्छी presentation आपने दी, very informative. I'm thankful to Kashif. He is pharmacist as he introduced, I think from Karachi University, and has more than 15 years experience working in Cell Pharmaceutical, now in IQVIA. Cell is the second largest pharmaceutical after Gates.
and he share his best of knowledge and what is happening in DRAP and what will happen in future. So it's a very important information for any company to work as a legal business in Pakistan. And without compliance of these regulations, no company is able to perform their fully GMP compliant operations. The main purpose of this emerging pharmaceutical leaders program is that if anybody in pharmaceutical industry has enough experience and he knows his work as a subject matter expert, he should come and he should share with other Pakistani colleagues. ओके बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने WHO में प्री क्वालिफिकेशन के लिए काम किया है, कुछ ने पिक्स पे किया है, काशिफ ने इतना अच्छा काम किया है, तो वो लोग आए और जो है बाकी कोलीग्स के साथ शेयर करें. वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर. जैसे GMP Compliance Academy, recently we started. Most of people you know, our vision is that it should be global company. It should not work in Pakistan. It should work in UAE. It should work in Europe. It should work in China and US. So slowly we're opening many offices. Mission is to share the knowledge for pharmaceutical industry. हमारी वैल्यूज हैं नॉलेज शेयरिंग, जिसकी ये एक आपने देखा है इवेंट, और पहले भी हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए हैं जिसमें USA के लिए है, GCC के लिए है, यूक्रेन के लिए है, मलेशिया के लिए है. वी आर डूइंग पार्टनरशिप विद वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज, जैसे एक्सटीडो जर्मनी है, वो हमारा ECTD के लिए पार्टनर है. ISP USA के लिए है. बहुत सारी चाइनीज कंपनी हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज हैं हमारे पार्टनर्स. यू कैन गेट डिटेल्स एंड वी आर नॉट ओनली डूइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वी आल्सो सप्लाइंग APIs, मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स. सो वी हैव वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो. सो वी हैव रिलायबिलिटी. जो भी कस्टमर हमारे साथ काम करता है, हम टेक्निकल सर्विसेज देते हैं. दे शुड हैव ऑसम एक्सपीरियंस. वी बिलीव इन एथिक्स. वट एवर वी मेक द कमिटमेंट विद आवर कस्टमर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स, वी डू. GMP compliance partner also available in US, New Jersey. हमारे मेन दो पिलर हैं, नॉलेज मैनेजमेंट है और टेक्निकल सर्विसेज हैं. We have experts on our panel, so this is very quick. We have a lot of services for sterile, non-sterile, biotechnology. We have a partner. अगर आपको बायोटेक की कोई भी टर्न की प्रोजेक्ट लेना है, APIs पाकिस्तान में बनाने हैं, we have partner from China and India. QC/QA है, उसमें हम हेल्प करते हैं. There are a lot of services from GCA, जो आप प्रोफाइल आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हमसे. और इसी तरह मैंने बताया मशीन हम सप्लाई करते हैं R&D के लिए, उसके बाद पायलट स्केल के लिए, कमर्शियल स्केल के लिए मटेरियल्स हम सप्लाई करते हैं, APIs, CPNs, कोटिंग मटेरियल्स, मेडिकल डिवाइसेस. Membership we offer, we have a lot of members. This is our expansion plan where we are working in Pakistan, UAE, and then we are moving to Europe, US, and we will also open an office in China. So this is very brief about GCA and why we started this emerging pharmaceutical leadership program, and we are looking forward more. We have many other speakers who will be talking about different topics. So thank you so much, Dr. Sabiha, Kashif, thank you so much, and thank you all participants for your wonderful participation. I know it's early morning in Pakistan and winter, it's difficult to wake up, but you know, nothing is you gain nothing without pain. Yes, so if you are waking up early, definitely I'm sure you got a lot of knowledge from Kashif presentation, and you should keep this passion for upcoming events also. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mr. Kamran Atif, for giving us your time. And once again, thank you so much, Mr. Kashif Ali. Now I'm ending this meeting.